थैंक यू फादर। इस दिन के लिए धन्यवाद करते खुदा, तुझे छोड़ और कोई नहीं है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर, तू बड़े और हम घटे खुदा, तूने हमारी हर एक चाहत को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड।
Nor forsake us, Lord. Thank you for your with us till the very end of this age, Father. Amen. We love you, Lord. Thank you for you answer each and every question of our hearts, Father. Thank you, Father. We thank you for fulfilling all our needs, Father. धन्यवाद करते खुदा, हमारे हर एक सवालों का जवाब तू देता है, इसलिए धन्यवाद करते। तू हमें सिखा परमेश्वर, You teach us, Father. Thank you for your lavish your mysteries on us, Father. Thank you for your wisdom. Thank you for your knowledge. तेरे ज्ञान के लिए धन्यवाद करते खुदा। We offer you this worship. Accept it as a pleasing sacrifice, Lord. In Jesus' name I pray, amen. Greetings to you all in Jesus' name. आप सबों का यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन। I thank God for each one of you. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप में से for हर एक के your लिए, prayers. आपकी प्रार्थनाओं के He लिए। is loving God. वो प्रेमी परमेश्वर He है, is mindful of us. उसका मन हमसे भरा हुआ है। He is the one who never leaves nor forsakes. वो परमेश्वर है जो न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है। He is our Lord. वो हमारा परमेश्वर He has प्रभु है। given us a privilege that we may come together उसने हमें ये मौका दिया है कि हम इकट्ठा हो and we may meditate on His word और उसके वचन पे मनन कर सके and continue in prayer और लगातार प्रार्थना में जारी that रखिए God may speak with us. कि परमेश्वर हमसे बातें करे God may give His word to each one of us. और परमेश्वर हम में से हर एक को वचन दे He may declare His heart to us. और वो अपने हृदय को हमारे सामने घोषणा करे। We all are reading the word of God. हम सब प्रभु के वचन को पढ़ते We हैं, all are coming together हम सब इकट्ठा हो रहे and हैं we are seeing that God is speaking with us. और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर हमसे बातें कर रहा We are है not walking in blindfolds. और हम अंधेरे में नहीं चल रहे हैं। God loves us. परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, He is speaking with us. परमेश्वर हमसे बातें करता God है is giving us light. और परमेश्वर हमें प्रकाश देता है He is showing us what is going to take place. और वो हमें प्रकट कर रहा है That we may learn, कि हम सीख सके, understand समझ सके and walk in the way which will please God. और हम उस मार्ग में चल सके जो प्रभु को प्रसन्न करे। And you will experience that many things are changing. और आप वो अनुभव करेंगे कि बहुत सारी चीजें बदल रही है God will not hide anything from His church. और परमेश्वर अपनी कलीसिया से कुछ भी नहीं छुपाएगा। 7 years tribulation may start any time in 2023. और 7 साल का क्लेश का समय कभी भी 2023 में शुरू हो सकता है। It is a thinking. ये हमारा विचार है, God has not told us, परमेश्वर ने ये हमें नहीं बताया, but we are guessing. पर ये हम हिसाब किताब लगा रहे हैं। So God is helping us, leading us. तो परमेश्वर हमें मदद कर रहा है। Not in January, then it will be in February.
अगर जनवरी में नहीं तो वो फरवरी में Not in होगा। February, then it will be in March. फरवरी में नहीं तो मार्च में Not in होगा। March, then it will be in April. मार्च में नहीं तो वो अप्रैल में होगा। Surely it is going to start. पर जरूर वो शुरू होगा। We need to be very sharp. तो हमें बहुत ही शार्प रहना है। As Jesus said, जैसे यीशु मसीह ने कहा, be sharp like serpent and humble like dove. सर्प की नाई तुम तेज रहो और कबूतर की नाई नम्र रहो। That means we need to organize our life according to God. इसका मतलब है हमें हमारे जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना है। We need to organize our life after hearing God. और परमेश्वर को सुनने के बाद हमें अपने जीवन को सही रीति से चलाना We है। need to sit at His presence. हमें जरूरी है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे। Time is so less. समय बहुत ही कम है We should not continue any longer in our foolishness. और हमें मूर्खता में और नहीं समय बिताना We है should not continue any longer in our own old patterns. और खुद के पुराने तरीकों में हमें नहीं चलना है। We need to hear God. हमें प्रभु को सुनना है। Now is the peak time to sit at His presence. अब बहुत ही गंभीर समय आ गया है, हमें प्रभु के चरणों में बैठना है। For our God is going to speak with us. क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे बातें He is करेगा going to unveil every hidden things. और वो हर छुपे हुए रहस्यों को बताएगा। He will guide us. वो हमें अगुवाई He करेगा will show us what to speak, how to speak. और वो हमें बताएगा कि क्या हमें बात करना है, क्या हमें कैसे हमें आगे बढ़ना है। He will teach us how to live life pleasing to Him. और हमें वो सिखाएगा कि कैसे उसको प्रसन्न करने वाला जीवन जीना है। They are making people to go and take karigma. और वो लोगों को करिश्मा लेने पे मजबूर कर रहे And हैं। I do not do anything for some man of God is saying, or some leader is saying, some pastors are saying. किसी पास्टर ने आपसे कहा, किसी अगुवाई ने आपसे कहा और आपने कर दिया वो काम, वो ऐसा नहीं है। Because Joy told I am doing, don't say like that. जॉय ने ऐसा कहा इसीलिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। You also sit at God's presence. आप भी प्रभु के उपस्थिति में बैठिए। Our God is a Father. हमारा परमेश्वर हमारा पिता है, He is going to speak with you. वो आपसे बातें करेगा He is going to put His thoughts, His heart inside you. और वो अपने विचारों को आपके अंदर डालेगा। So do as God says. तो करिए जैसे परमेश्वर आपसे कहता Listen है, to Him. उसका सुनिए। 7 years tribulation may start anytime now. 7 साल का सताव का समय अब से कभी भी शुरू हो सकता है। December 2022, January 23, February 23, March 23, April, anytime now. दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023, मार्च 2023, कभी भी। Yom Kippur is not fulfilled yet. याम किपुर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। So by this we know that Jesus will fulfill Yom Kippur, which haven't fulfilled yet. इसका मतलब है यीशु मसीह याम किपुर को पूरा करेगा जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, He is going to fulfill. वो उसे पूरा करेगा। You can see at home, open Leviticus 23 and go through it. आप लेवियों का किताब उसका 23वां अध्याय पढ़िए And you learn to understand the festivals of the Lord. और आप प्रभु के पर्वों को सीखने की कोशिश कीजिए। And there are 3 feasts which is not completed. और 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। Feasts of Trumpet, तुरैयों का पर्व, Feasts of Tabernacle, तंबुओं का पर्व, Feast of Yom Kippur. याम किपुर का पर्व, September 2026. सितंबर 2026। Maybe we are going to see God. हो सकता है हम प्रभु को देखें We are going to experience rapture. और हम उठा लिए जाने को का अनुभव ले। This is not a fixed date. ये जो है फिक्स्ड डेट नहीं है, This is calculation according to the trumpets and festivals of the Lord. ये तुरैयों और तंबुओं का पर्व, ये 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे नहीं हुए। 3 पर्व है जो अब तक पूरे
पर्वों के हिसाब से उसे हिसाब किताब किया गया है। Jesus told us to be ready. यीशु मसीह ने कहा कि तैयार Our हो Lord जाओ, wants us to be ready. और हमारा प्रभु चाहता है कि हम तैयार हो April जाएं। 23, a tribulation may begin. अप्रैल 23 हो सकता है कि सताव का समय चालू हो जाए, Anytime. कभी भी। You don't worry about date. आप डेट का चिंता मत कीजिए, God cares about it. क्योंकि परमेश्वर उसकी चिंता करता God है, will begin His start. और परमेश्वर उसकी शुरुआत को चालू करेगा। God can start anytime. और परमेश्वर कभी भी शुरू कर सकता। Now we are waiting on God. अब हम प्रभु पर रुके हैं, For His word says, I will pour my spirit on all flesh. क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने आत्मा को हर एक के ऊपर उंडेलूंगा, पर On all flesh. सब मांस के ऊपर He is going to pour His mighty spirit on you. वो अपने सामर्थशाली आत्मा को आपके ऊपर The उंडेलेगा। latter rain is going to come terrifically. अंतिम बारिश है वो बहुत तायत से होगी, अद्भुत तरीके से। You need to be ready, church. आपको तैयार रहना है You कलीसिया। are called to serve God. आपको बुलाया गया है परमेश्वर की सेवा करने। You need no teacher anymore. आपको अब से कोई शिक्षक की The जरूरत नहीं, Holy Spirit is a good teacher. क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत अच्छा शिक्षक है। We all are together हम सब इकट्ठा है because of His love. उसके प्रेम के कारण। He bound us together. उसने हमें बांधा है, We are the body of Lord Jesus Christ, और हम क्रिस्त यीशु मसीह की देह है। carrying the same anointing, same revelation. वही प्रकटीकरण को लेके, वही अभिषेक को लेके, और हम आगे बढ़ रहे हैं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ है, He will never leave you nor forsake you. वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं The त्यागेगा। pouring and outpouring of the Holy Ghost is at hand. और परमेश्वर का अपने आत्मा को उंडेलना बहुत ही नजदीक है। Do not grieve the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को दुखित मत करो, Open for Him. उसके लिए अपने आप को खुलासा करो, Open your mind for Him. अपने मन को उसके लिए खुलासा Open करो, your heart for Him. अपने हृदय को खुलासा Be करो। obedient to the Lord. प्रभु के लिए आप आज्ञाकारी बनो, Open your hearts for correction. और सुधार के लिए अपने हृदय को खोलो। Open your mind for receiving from Him. अपने मन को खोलो कि आप उससे प्राप्त कर He will सको। show you what to do. वो आपको बताएगा कि क्या करना है, We are going to see, और हम देखेंगे, and we are looking for the outpouring of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के उंडेलने को लिए हम रुके हैं। And surely God will fulfill all our desires. और जरूर परमेश्वर हमारी हर इच्छा को पूरा Because करेगा, He kept us for the end time. क्योंकि उसने हमें अंत समय के लिए रखा We है, are the people of end time. और हम लोग अंत समय के लोग When हैं। AI has reached to its top, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही टॉप में है, and we are the people who are going to stand against all the knowledge of the enemy. और हम लोग वो लोग हैं जो दुश्मन के हर ज्ञान के विरुद्ध खड़े होंगे, To perform God's perfect will. परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा करने के Let us लिए। wait on His time. तो आइए हम उसके समय के लिए रुके। He will show us वो हमें बताएगा as it is going to come. जैसे वो होने वाला He is है। going to speak with you. वो आपसे बातें करेगा। Just make an agreement with Jesus. सिर्फ यीशु मसीह के साथ आप वो वाचा को बांध ले, Just be one with God. परमेश्वर के साथ एक हो जाए। As the enemy is going stronger and stronger, जैसे दुश्मन सामर्थशाली और सामर्थशाली हो रहा है, as the Katehon system is making his covenant stronger, जैसे कतेहोन सिस्टम अपने वाचा को और दृढ़ कर रहा है, we need to be strong in the Lord. तो हमें प्रभु में बहुत ही सामर्थशाली होना है, And we need to sit at God's presence. और हमें प्रभु के उपस्थिति में बैठना। Spirit of Antichrist is at work. अंत क्रिस्त के का आत्मा इसमें काम कर रहा है। We know, हम जानते हैं for God is unveiling the things. कि परमेश्वर चीजों को खुलासा कर रहा है। Now people are powerless. अब लोग जो है उनमें सामर्थ्य नहीं है। People are like a sheep
और लोग जो है बेड़ के जैसे हैं। They are not people, they are sheeples. अभी पीपल मतलब लोग नहीं, शीपल है मतलब बेड़े हैं। But we need to depend on God. पर हमें प्रभु में भरोसा करना है, उस पर निर्भर रहना This है, God will save anyone, anytime. क्योंकि परमेश्वर किसी को भी कभी भी बचाएगा। I was thinking मैं सोच रहा था and I was sharing with Rekha. और मैं रेखा को बता रहा था, Hunter, he kept a net कारी ने झाल बिछा के रखा था and a few seeds that birds may come and eat. और कुछ उसमें खाने के बीज रखे थे कि पक्षी आए और उसे खाए। And some of the pigeons they saw और कुछ कबूतरों ने उसे देखा and they all came there और वो नीचे आ गए and they ate fully. और वो अच्छे से खाए। And when they were और जब full, उनका पेट भर गया they tried to fly. वो उड़ने की कोशिश की। And they tried to fly. और जब उन्होंने उड़ने की कोशिश They की found themselves caught up in the net. तो उन्होंने अपने आप को झाल में फंसा हुआ पाया। One of the leaders said, उनमें से एक अगुवाही ने कहा, "Listen, सुनो, we all need to be one हमें एकता में रहना है and we will fly together और हम एकता में होकर साथ में उड़ सकते हैं, with one strength एक ही उड़ान में। and we will take that net and we will fly." और हम उस जाल को उठाएंगे और उड़ जाएंगे। And they did it. और उन्होंने वो किया They were successful. और वो कामयाब रहे। Now पर अब we can see हम देख सकते हैं ourselves, अपने आप को, everyone, हर एक, each and every human being हर मनुष्य caught up in the net. वो नेट में अटक गया है। That net is www. वो नेट है www. We are in internet. हम इंटरनेट में हैं। We are caught up so much. हम इतना इसमें इस जाल में फंस गए हैं, Without it, we can do nothing. इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। With AI, they have reached to everyone. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो हर एक तक पहुंचा है। We can't save ourselves, हम अपने आप को बचा नहीं सकते, but our Lord can. पर हमारा प्रभु कर सकता Our है। Lord is enough. हमारा परमेश्वर काफी है। As we are living our life, जैसे हम जीवन को जी रहे हैं, just be open to God, केवल परमेश्वर के सामने आप खुलासा हो, for He is going to outpour His Spirit on you. क्योंकि वो आपके ऊपर अपने आत्मा को ढेलेगा। Should we open Revelation 1st chapter and the 10th verse? क्यों न हम हमारे बाइबल में प्रकटीकरण पहला अध्याय 10 वचन। I was in the Spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of the trumpet. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। Your author is saying, यहाँ पर लिखने वाला कह रहा है, John is saying, यूहन्ना कह रहा है, I was in the Spirit on the Lord's day. मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। So as we are learning the revelation, और जैसे हम प्रकाशित वाक्य सीख रहे हैं, we need to be in the Spirit. हमें आत्मा में होना जरूरी है। That means we need to give our lives totally under the kind, gracious, powerful control of the Holy Spirit. इसका मतलब है हमें अपने जीवन को प्रभु के सामर्थशाली और पवित्र हाथों में देना है। For we can do nothing of ourselves, क्योंकि हम खुद का कुछ भी नहीं कर सकते, but only God. पर केवल परमेश्वर। It is a time when we need to be driven by the Holy Spirit's power. ये समय है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले। This is not the time to be driven by our own lusts and passions. ये समय वो नहीं है कि हम हमारे खुद के चाहतों के पीछे चले। It's a time. ये समय है। It's a time where we need to be completely one or a union with our Lord ये समय है कि हम हमारे प्रभु के साथ एक हो जाए in the Holy Ghost. पवित्र आत्मा में, Be one उसके साथ एक हो जाए in mind, मन में, in purpose. मकसद में। You heard this story which I have illustrated just now. मैंने जो आपको ये कहानी बताई आपने सुना, But much more better than any stories of the world, दुनिया के कहानियों से बहुत बढ़कर our Lord says, be one.
हमारा प्रभु कहता है कि एक हो जाओ। We need to be one union in the mind, हमें मन में एक होना है, one purpose, एक मकसद, and one in our life. और हमारे जीवन में एक बनना है। We open John 14:23. क्यों न हम यूहन्ना 14 उसका 23 खोले। Jesus answered and said unto him, If a man loveth me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make a home with him. यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। To be with the Lord, प्रभु के साथ To होने के लिए, be in the Spirit, आत्मा में रहने के लिए we need to love our Lord Jesus Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना बहुत जरूरी है। We need to love our Lord हमें प्रभु को प्रेम करना with है, all our heart, हमारे पूरे हृदय के with साथ, all our mind, पूरे मन के साथ, and with all our strength, और पूरे सामर्थ के साथ, and keep His word. और उसके वचन को रखना है। Whatever may take place in your life, आपके जीवन में कुछ भी क्यों न हो जाए, do not leave His word and turn to right or left. उसके वचन को छोड़कर दाएं बाएं मत मुड़े। Yes, न दाएं न बाएं. Keep moving. लगातार उसमें जारी Love रखें। the Lord. प्रभु से प्रेम If करें। you love God, you will never fail. अगर आप प्रभु से प्रेम करेंगे, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। You will never fail. आप कभी भी फेल नहीं होंगे। His love will connect you with Him. और उसका प्रेम आपको उसके साथ एक करेगा। Keeping His word will enable you. उसके वचन को मानने से आपको आप समर्थ बनेंगे, You will receive His understanding. और आपको उसकी समझ And मिलेगी। here clearly Jesus says that I and the Father will come and abode with Him. और यहाँ पे यीशु मसीह साफ रीति से कहता है, मैं और पिता आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे। If you obey, अगर आप आज्ञा मानेंगे, Jesus and the Father will come and abode. यीशु मसीह और उसका पिता आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। He will abode with you. वो आपके साथ रहेंगे, They will make home in you. आपके अंदर घर बनाएंगे। What a powerful life you will be living. कितना सामर्थशाली जीवन आप जिएंगे। This life is not a weak life. और ये जीवन जो है कमजोर जीवन नहीं No है। more the old pattern. अब से कोई भी पुराना तरीका No more नहीं, the fearful pattern. अभी भय का तरीका But नहीं। you are the people who are moving with the Holy Ghost power. पर आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामर्थ से आगे बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ से। 15th chapter and the 7th verse. 15 अध्याय 7 वचन। If you abide in me and my words abide in you, you shall ask whatever you will and it shall be done unto you. यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। Be in the Lord. प्रभु में बने रहो। If you be in the Lord, अगर आप प्रभु में बने रहते there is हैं, no condemnation against तो you. आपके विरुद्ध कोई भी दोष नहीं। If you be in the Lord, अगर आप प्रभु में हैं, you will fulfill no more the lusts of the flesh. अगर आप प्रभु में हैं, Then abide in His word. तो उसके वचन में बने रहो। You will not fail, man. आप फेल नहीं हो You need जाएंगे। to understand. आपको समझना You है, need to make up your mind. आपके मन को जानना है। God told Gideon, go with the pots and a torch and a trumpet. गिदोन को परमेश्वर ने कहा कि मटके, मशाल और तुरई लेकर तू आगे बढ़, Doubt not. शक मत करो। Gideon never doubted God. गिदोन ने परमेश्वर पे शक नहीं We किया। are at the beginning of the end. और हम जो है अंत के शुरुआत में हैं। Never doubt God. कभी भी प्रभु पर शक मत If you करो। want to enjoy the victorious life, अगर आप विजयशाली जीवन आनंद मनाना चाहते हो उसका, then obey. तो आप उसके आज्ञा का पालन करिए। Hear His word. उसके शब्द को सुनिए, Hear His word. उसके वचन को सुनिए, Abide in His word. और उसके वचन में आप
बने रहे। if you abide in His word, अगर आप उसके वचन में बने रहते हैं then ask anything. तो आप कुछ भी मांगिए। You know God is preparing you for the end time ministry. और आप जानते हैं परमेश्वर आपको अंत समय के सेवकाई के लिए तैयार कर रहा Ask है। for the latter rain. और अंतिम बारिश के लिए मांगिए। Ask for the move of the powerful move of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए आप मांगिए It shall be done to you. और वो आपके लिए किया जाएगा। 17th chapter and 23rd verse. 17 अध्याय का 23 वचन। I in them and thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me and loved them as thou hast loved me. मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। Same way, उसी तरीके से Father is going to love you. पिता आपसे प्रेम His करता है love is going to abide on you. और उसका प्रेम आप में वास करता है। As Father loved Jesus, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम so किया will He love you. उसी तरह से वो आपसे प्रेम करेगा। Be in the Lord. प्रभु में बने When रहिए। you are in the Lord, जब आप प्रभु में हैं that you will become perfect in one. तो आप परिपूर्ण बन जाएंगे, उसमें एक हो जाएंगे You will be perfect in one. और आप एक में परिपूर्ण हो जाएंगे। Yes, that one is our Lord. और वो एक है हमारा प्रभु। We all will become one. हम सब एक हो We will जाएंगे be perfected in Him. और उसमें हम परिपूर्ण किए जाएंगे And His love will be on us. और उसका प्रेम हमारे ऊपर रहेगा। The same love वही प्रेम which was on Jesus. जो यीशु मसीह पे था It will be on you. वो आप पर रहेगा। If God has not hidden anything from Jesus, He is not going to hide anything from you. अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह से कुछ नहीं छुपाया तो वो आपसे भी कुछ नहीं If छुपाएगा। God performed miracles through Jesus, then He will perform through you. अगर परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह चमत्कार किए तो वो आपके द्वारा भी करेगा। Then give your life totally to God the Father as Jesus तो did. अपने जीवन को पूरी तरह से पिता परमेश्वर के हाथों में दे That दीजिए we may be perfected in one. कि हम एक में परिपूर्ण किए जाएं। Glory to God. परमेश्वर की महिमा Should हो। we open Romans 8:8? क्यों न हम रोमियो का पत्र 8:8 खोले। So then they that are in the flesh can't please God. इसीलिए जो They may. देह में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। If you are in the flesh, अगर आप शारीरिक दशा में हैं, you can't please God. आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं To कर please सकते। God, परमेश्वर को प्रसन्न you करने के लिए need to come out of the lusts of the flesh. तो आपको शारीरिक वासनाओं से बाहर निकलना होगा। Then the Spirit will take complete control of you. तभी आत्मा आपका पूरा ताबा लेगा। John the Revelator revealed प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने प्रकट किया and we at the end taking that revelation. और अंत में हम उस रहस्य को ले रहे हैं We are living with that Prakatikarana. और हम उस प्रकटीकरण को के साथ जी रहे So हैं। please God तो परमेश्वर को प्रसन्न कीजिए that you may have the move of the Holy Spirit in your life. कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा का बहाव हो। Look at the great heroes of the Bible. बाइबल के बहुत बड़े बड़े हीरोज को देखो। You will be like one of them. आप भी उनमें से एक होंगे। उन जैसे में से एक रहेंगे. You will much more greater than that. आप उनसे और बढ़कर रहेंगे। Many promises of Jesus Christ are there. पर प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे अभिवचन हैं। All will be A and amen for you. सब आपके लिए हाँ और आमीन हो जाएंगे। 9th verse. 9वां वचन। But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwelt in you. परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। Yeah, if the God's Spirit comes in you, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है then तभी
You are of God's Spirit. तो आप परमेश्वर का आत्मा हो। Spirit dwelling in you. परमेश्वर का आत्मा आप में निवास Now, करता है। if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. अगर किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका नहीं। To be his people, उसका जन होने के लिए we need to have his Spirit. हमें उसके आत्मा की To have जरूरत his Spirit, है। उसके आत्मा को पाने के लिए obey his voice. उसके आवाज के आज्ञा का पालन करना है। Meditate his word. उसके वचन पर मनन Do करना है according to his word. और उसके वचन के अनुसार करिए। You will fulfill God's desire. आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा You will करेंगे be a people with the Spirit of Christ. और आप मसीह के आत्मा से भर जाएंगे और उसके जन बन जाएंगे। You will enjoy God's presence. और आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद Can we मनाएंगे। become the house of God? क्या हम प्रभु का मंदिर बन सकते हैं? Can we be led by the Holy Spirit? क्या हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पा सकते Can हैं? we experience the Holy Ghost every time? क्या हमें हर समय पवित्र आत्मा का अनुभव ले सकते हैं? Why not? क्यों नहीं? In Christ, you are more than conquerors. क्रिस्त के अंदर आप विजयशालियों से बढ़कर है You are going to experience. और आप उसका अनुभव He said, लेंगे। ask of me वो कहता है मुझसे मांगो anything. कुछ भी। Will he not give you Holy Spirit? क्या वो आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा? Should we open 2 Corinthians 5th chapter 17th verse? दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 5वां अध्याय 17 वचन। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वो नई रचना है। Be in Christ. क्रिस्त के Be अंदर a रहो, new creation. नई रचना बनो Experience a new life. और नए जीवन का अनुभव लो। Moving always with the power of Holy Ghost. लगातार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलो Not fulfilling the passion and the lusts of this flesh. और इस दुनिया के वासनाओं को पूरा मत करो, न करते हुए न करते हुए fulfilling the desire of the Lord. प्रभु की इच्छा को पूरा करो। Old things are passed away. पुरानी बातें बीत गई Behold, है, all things have become new. देखो सब बातें नई हो गई We are है। no more the carrier of the old wine. पुराना दाख रस नहीं लेके हम चलते, पुराना दाखरस लेके चलने वालों में से नहीं है। We are the carrier of the new wine. हम नए दाख रस को लेके हुए चलने वाले हैं He is going to pour out a new wine. और वो हमारे ऊपर नए दाख रस को ढेलेगा। Walk in the Spirit. आत्मा में चलिए, To be in the Spirit, आत्मा में रहने के be लिए in the perfect will of God. प्रभु के परिपूर्ण इच्छा में He रहिए। said, behold, all things have become new. वो कहता है देखो सब कुछ नया हो You गया became a new vessel. और आप नया पात्र बन गए, Vessel of power. सामर्थ का पात्र, Vessel of His glory. उसकी महिमा का पात्र, People and prophet and prophetess of the end time ministry. नबूवत करने वाले, अंतिम समय की सेवा करने वाले बने। You are the people. आप वो लोग हैं, You are filled with the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। Should we open 2 Corinthians 6th chapter and 15th verse? दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 6वां अध्याय 15 वचन। And what conquered hath Christ with Belial? Or what part hath he that believed in an infidel? और मसीह का बिलियाल के साथ क्या लगाव या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? Do you want to walk in the Holy Ghost? क्या आप पवित्र आत्मा में चलना चाहते हैं? Check your own life. अपने खुद के जीवन को जांचो, How I am walking. कैसे मैं चल रहा हूँ? If it is not right, अगर ये सही नहीं है, surrender yourself to God. अपने आप को प्रभु को उसके हाथों में समर्पित करो। Clearly he says, साफ रीति से you वो don't कहता have any है relation with Belial. आपका बिलियाल से कोई भी संबंध नहीं। You are of Christ. आप क्रिस्त के हैं, You are of Christ. आप क्रिस्त के You are हैं, not of Belial. आप बिलियाल के नहीं हैं। You are a people of belief and faith. और आप विश्वास के लोग हैं You are not a people of unfaithful people. और आप अविश्वासी लोग नहीं You are हैं। not the people who doubt. आप वो लोग नहीं है जो शक करें। Verse 16 says, 16 वचन and कहता what है agreement has the temple of God with idols?
और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर में क्या संबंध? No agreement. कोई संबंध नहीं There है। should not be any idol in your heart. आपके हृदय में कोई मूर्ति नहीं रहनी Totally चाहिए। sold out for Christ. पूरी तरह से क्रिस्त, You are the end time prophets. और आप अंतिम समय के भविष्यद्वक्ता है। You are the end time servants of God. आप परमेश्वर के अंत समय के दास You are हैं। not called to fulfill your own things. आप अपने चीजों को पूरा करने के लिए नहीं You are बुलाए गए। called here to listen carefully to God. आप बुलाए गए कि आप परमेश्वर को बहुत ही ध्यान से सुने, You should not become the place for the idols. और आप मूर्तियों की जगह न बने। You are the temple of God. आप परमेश्वर के मंदिर है। Don't love anything. किसी को भी प्रेम मत करो। Not your father, mother, brother, sister, anyone in your life. Wife, आपके anyone. जीवन में आपके माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, किसी को भी वो स्थान मत दीजिए। No place for any idol. किसी मूर्ति को वो स्थान मत दीजिए। Only for the Lord. केवल वो जगह प्रभु की Be है। a people sold out for Christ. क्रिस्त के लिए बिके हुए लोग रहो। Only for Christ. केवल क्रिस्त के Let the लिए। seal of Jesus be on you. यीशु मसीह की मुहर हो आपके It says, for ऊपर। you are the temple of the living God. आप जीवते परमेश्वर के मंदिर है, The Spirit of God dwelt in you. और परमेश्वर का आत्मा आप में निवास He करता है। dwelt in them. वो उनमें निवास He says, करता है। I dwelt in you. वो कहता है मैं तुझ में निवास What a करता हूँ। powerful life we have. कितना सामर्थ्यशाली जीवन हमें We है। don't have a spirit of timidness or fear. हमें डर और भय की आत्मा नहीं We है। have a spirit of boldness. हमें धैर्यता की आत्मा है। He says, I will walk in them. वो कहता है मैं उनमें चलूंगा। He will walk in us. वो हमारे अंदर चलेगा। He will dwell in us. वो हमारे बीच में निवास He will करेगा। be our God. वो हमारा प्रभु होगा। No power can stand against you, church. कोई सामर्थ आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Every कलीसिया। weapon formed against you shall be destroyed. और हर हथियार जो आपके विरुद्ध बना है वो नाश हो जाएगा। Every weapon which works against you shall be demolished. और हर एक हथियार जो आपके विरुद्ध बना चलता है वो नाश हो सफल जाएगा। नहीं होगा। He's a God. वो हमारा Do you know परमेश्वर He is है। a God? क्या आप जानते हैं वो हमारा He प्रभु है, dwelt in परमेश्वर है, वो हमारे अंदर He निवास himself करता है। says, वो कहता है I dwell in them. मैं उनमें निवास करता हूँ, I will be their God. मैं उनका परमेश्वर होऊंगा They shall be my और people. वो मेरे लोग रहेंगे। As the 7 years tribulation will start, जैसे 7 साल का सताव का समय शुरू होगा, the enemy's power will grow more. दुश्मन का सामर्थ्य और बढ़ेगा। Enemy will show forth his power more. दुश्मन अपना और सामर्थ्य दिखाएगा। Don't worry. चिंता मत Our कीजिए, God is with us. हमारा परमेश्वर हमारे साथ In the है। middle of the 7 years tribulation, 7 साल के सताव के बीच में He will take us. वो आएगा In the और हमें लेकर blink of जाएगा। an eye. पल के झपकते ही He is our God. वो हमारा प्रभु है। 17th verse says, 17 वचन कहता है, Wherefore come out among them. इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, Come out of the unbelievers. अविश्वासों से अलग Come रहो, out of Edom. इदोम से अलग हो Come जाओ, out of heathen people. Come out of unbelieving people. अविश्वासों में से बाहर Come निकल आओ। out those who don't walk in faith. जो विश्वास में नहीं चलते उनमें से बाहर निकल Separate आओ ye for God. और परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करो। And touch not the unclean things. अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। He has not called you to touch and mangle with it. वो आपको उनको छूने के लिए और उनमें एक होने के लिए नहीं कह रहा। Now on you will be moving with the power of the Holy Spirit. और अब से आप पवित्र आत्मा में चलते He says, हैं। I will receive you. और वो कहता है मैं तुझे ग्रहण I will करूंगा, receive you for my purpose. मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा मेरे मकसद के In the लिए। rapture day, I'm going to take you home. और उठा लिए जाने के दिन मैं तुझे घर You लेकर don't need जाऊंगा। to be afraid of anyone in this world. इस दुनिया में किसी से भी न डरना। I am with you, he says. वो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। In Ephesians 5th chapter 31st and 32nd verse. इफिसी का रास पत्र 5वां अध्याय 31 और
32 में, For this cause man shall leave his wife, his father and mother. इसी कारण मनुष्य अपने माता और पिता को छोड़ देगा, and shall be joined to his wife, और पत्नी से मिला रहेगा, and they two shall become one flesh. और वे दोनों एक तन होंगे. He is speaking something not of husband and wife. वो पति पत्नी के बारे में नहीं कह रहा. 32nd verse clearly says, this is a great mystery. ये बड़ा भेद है. But I speak concerning the Christ and church. पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता Be हूँ, one with the Lord. प्रभु के साथ एक रहो, Move with the power of the Holy और Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ से चलो. John the prophet, यूहन्ना भविष्यद्वक्ता, here he says, on the Lord's day, वो कहता है कि प्रभु के दिन I में was in the Spirit. मैं आत्मा में था. The same Spirit is available for you right now. और वही आत्मा आपके लिए उपलब्ध The है same अभी. God is available for you right now. और वही परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध He है. want to give you the mystery experience to be one with the Lord. और वो आपको परमेश्वर के साथ एक होने के लिए कह रहा है. इस रहस्यमय संबंध का अनुभव लेने के लिए बुला रहा है. You can have the mystery experience. और आप रहस्यमय अनुभव ले सकते हैं. I was in the Lord, he said. वो कहता है मैं प्रभु में था. God bless you, church. हे कलीसिया, परमेश्वर आपको This आशीष time दे. I was in the Spirit मैं आत्मा में था. on the Lord's day. प्रभु के दिन पर, We will meditate on this next week. और हम इस पर मनन करेंगे आने वाले हफ्ते. Lord's day. प्रभु का दिन. But today, पर आज I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, give yourself. अपने आप को दीजिए. Be available in His hands. उसके हाथों में उपलब्ध रहिए. Potter's hand. कुम्हार के हाथों में, Shepherd's hand. चरवाहे के हाथों में. The one who gave His life for you. His hands. वो जिसने आपके लिए अपने जीवन को दे दिया, उसके हाथों The में. one who said, और वो जिसने कहा we will come हम आएंगे and make a home with you. और तुम्हारे साथ निवास करेंगे. In His hand. उसके हाथों में Give yourself. अपने आप को दे दे. You will never ever learn what defeat is. आप कभी भी हारना नहीं सीखेंगे. You will be always more in His glory. हमेशा आप उसके महिमा में May चलेंगे. the power of God envelop you. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको ढक दे. May the power of God envelop you. परमेश्वर का सामर्थ आपको ढक दे. May the Spirit of Holy God lead you और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे. in victories. विजय में. In that place you may understand Him. और उस जगह आप उसको समझ सके. In that place where you may have a mystery experience with Him. उस जगह पर जहाँ पर आप उसके रहस्यमय अनुभव को ले सके. Please be available for God. आप प्रभु के लिए कृपया करके उपलब्ध रहिए. A great rain is going to come. क्योंकि बहुत बड़ी बारिश आने वाली है. A latter rain is going to come. अंतिम बारिश. And He is going to pour His Spirit on our flesh. और वो सब देह के ऊपर वो अपने आत्मा को दे देगा. Father in heaven, हे स्वर्ग में पिता, I thank you for these your precious children. मैं धन्यवाद करता हूँ इन तेरे बहुमूल्य बच्चों के लिए Those who are available for you जो आपके लिए उपलब्ध है. to learn your word, तेरे वचन को सीखने के लिए, to grow in you, तुझ में बढ़ने के to लिए be filled with your revelation, और तेरी प्रकटीकरण से बढ़ने के लिए, that they may lead victorious life. कि वो विजयशाली जीवन जी सके, Glorious life महिमावंत जीवन in this beginning of the end. इस अंत के शुरुआत As में. you appointed them, जैसे तूने उन्हें नियुक्त किया as है you called them to be Philadelphia Church, और जैसे तूने उन्हें बुलाया है फिलदल्फिया कलीसिया कर पुकारा है. Father, हे पिता, we thank you and we praise you. हम धन्यवाद करते हैं, तेरी The स्तुति things करते which you हैं. are giving is awesome.
जो चीजें तू दे रहा है वो अद्भुत The है, things which you are telling us to ask is wonderful. और जो चीजें तू हमें मांगने को कह रहा है वो अद्भुत है। You are our Father, तू हमारा पिता है and we lack no good. और हमें कोई भी अच्छी भली बात की घटी नहीं। Thank you for leading each one of us. धन्यवाद करते हैं कि तू हम में से हर एक की अगुवाई कर रहा Let है। every child here be blessed. यहाँ पर हर बच्चा आशीषित हो जाए Let every need of theirs be met gloriously and powerfully. और हर एक इनकी जरूरत तेरी महिमा से पूरी हो। Every weapon that is coming against them be destroyed and demolished. हर शस्त्र जो उनके विरुद्ध आ रहा है वो नाश हो जाए Let your children be bold. और तेरे बच्चे धैर्यवान Let बने। every need of theirs be met gloriously. इनकी सारी जरूरतें तेरी महिमा We से thank you पूरी for हो। they are your children, हम धन्यवाद करते हैं कि ये तेरे बच्चे children हैं, of Most High God, सर्वोच्च परमेश्वर के बच्चे, in whom God dwelt. जिनमें परमेश्वर निवास करता है। In Jesus' loving name. यीशु के प्यारे नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन।